प्रयास और अनुभव का प्रतीक आज हमारे बीच में है. Today we have real gems. They are our treasures, and the treasure is to be treasured, and it is to be celebrated. Today we have Mr. Naseem Ahmed Bhatt, All India Rank 7, Miss Prasanjeet Kaur, All India Rank 11, Mr. Anil Kantota, All India Rank 14, Civil Services Examination 2022. The students have been asking time and again when will lecture come here. I am sharing with you, my dear daughters, feel that you are privileged. I got phone calls from other colleges, and in absentia I say sorry to them because I had to deny. I got phone calls yesterday evening कि हमने सुना मैडम आपके कॉलेज में कल ये प्रोग्राम है तो हम भी आ सकते हैं क्या? I was very sorry to say no. Whole of India, very less number of girls usually qualify the exam. So until 2006, if you see, less than 20% of the qualifiers were women. Now, when you come to around 2020, that number went up to 29, and this time for the first time it has crossed 30%. 34%. And beyond that, all India top 4 ranks, they're all women. Ishita, Garima, and Sugati. These are all women, and in the top 20, around, I think majority are women. So I would say, I want to start the talk with that times are changing, and so should we. Today in CSE 2022, 34% of the qualifiers have been women, but we want equal representation, which is 50%. So I come from a small town in Rajasthan called Guru Shahabad. It's a remote place, but remote because आज तक वहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था, like literally किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था. People used to go into state services and all, but nobody had qualified IAS. So मैं NIT श्रीनगर में था, so I thought कि let me try for civil services. But a lot of people were there who were like यार तुम्हारे इलाके से किसी ने भी आज तक नहीं किया, so don't you think that would be an obstacle? I said यार मतलब ऐसा भी तो होता है कि हर टाइम पे कोई ना कोई फर्स्ट तो होता ही है ना, कि अगर वहाँ से किसी ने किया नहीं है तो मे बी मैं पहला बन जाऊँ जो वहाँ से करे, है ना? That thing you should always remember. अगर किसी ने नहीं किया है तो आप पहले बनो, ओके? एक न्यूरो आइंस्टाइन था जिसने पहली बार रिलेटिविटी का सोचा. एक पहला था चार्ल्स डार्विन who became heir one from JNT. And there were so many people who did something for the first time. तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले किसी ने किया है या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रखता. आपको बस ये सोचना है कि आप इतने काबिल बन सकते हो क्या कि वो करें. वो करने के लिए आप काबिल बन सकते हो. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट है जो मुझे याद आ रही है, which is become a man of value and not of success. उन्होंने मैन बोल दिया, मैं बोलूँगा कि become a person of value and not of success. What does that mean? Which means कि आप इतने एक्सेल करो खुद में कि आपको कोई ऑब्स्टिकल रोक ना पाए. अब ये मत सोचो कि आपको IAS बनना है, ये एक छोटा गोल है, ठीक है? अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा, एक छोटा गोल है. आप even those people were like यार this is one of the most difficult exams, कैसे होगा क्या होगा. मैंने बोला सब देखेंगे. द पॉइंट इज फर्स्ट यू सेट अ गोल. ओके, तो मैंने गोल तो सेट कर लिया था, अब पैशन था. उसके बाद मेरे को फिगर आउट करना था कि एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ द पीपल, आपको कुछ भी करना है पहले गोल आप सेट कीजिए, ठीक है? एक बार आपने गोल सेट कर लिया देन इट बिकम्स रियली इजी. सो सेकंड थिंग वाज हाउ टू डू सिविल सर्विसेज. अब जैसे वो कब्बे की स्टोरी आपने सुनी होगी कि पानी में कंकर डाल के उसे पानी पिया. What is the moral of that story? It is कि if there's a will, there's a way. So मेरा भी ये था कि मैं वे तो निकाल लूँगा, will तो है. So उसके बाद 2019 में I did my BTech and I went to Delhi. And Delhi में I started to go around and I had this lack sort of, मतलब I was confident but there was sort of पता नहीं है कैसा competition होगा, कितने सारे लोग होंगे. And when I went to the class,
आई वेंट टू वन क्लास एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, वहाँ जाके मुझे पता चला कि मतलब आई एम गुड एक्चुअली। ओके, जितना मेरे को लगता था कि लोग हाइपर इंटेलिजेंट एंड मतलब आसमान में उड़ रहे हैं, उतना भी नहीं है। आई एम फाइन, आई कैन ऑल्सो डू दिस, बिकॉज मुझे तो कि भाई मुश्किल था, तो ऐसा लगा कि कुछ मुश्किल करना चाहिए कि जहाँ पे हार्ड वर्क करें कुछ लगे कि हाँ भाई मेहनत हुई है। तो वो एक प्राइमरी रीज़न था, और दूसरा था कि पढ़ने को इतना कुछ मिलेगा, ह्यूमैनिटीज़ का वो सब चीज़ें जो कि बीइंग द साइंस बैकग्राउंड से वो चीज़ें मिली नहीं थी कभी करने को। तो आ गए लेके मैंने जम्मू में ही तैयारी की है, तो बेसिक बुक्स वगैरह सब पढ़ना शुरू कर दी, और तब यही सोच के आते हैं कि हाँ भाई हम तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही छोड़ देंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉप 10 में आ जाएंगे, IAS मिल जाएगी। लेकिन आस्ता आस्ता पहले 6 महीने 8 महीने तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद जनरली पता चलता है कि नहीं ये अब करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ा पूरे आंसर्स लिखे, और जैसे ही जेके का खत्म हुआ मेंस, जो कि काफ़ी डिले हो गया था, तो 1 महीने बाद आपके प्री का स्कोर आ गया, सॉरी सेकंड प्री थीम्स का आपका टाइमलाइन आ गया। सेकंड प्री में ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि भाई नहीं होगा, 1 महीने में कहाँ क्या हो सकता है। लेकिन वही बात है कि मैं डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करनी है। तो 1 हफ्ते पहले जैसे कि मार्कशीट आती है, तो मैंने अपनी मेंस की मार्कशीट देखी, तो मुझे लगा कि हाँ भाई बस प्री निकालना है, उसके बाद तो हो जाएगा। और वही बात है कि मैं यही बोलूँगा, कामनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वो काम होना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप आराम से 5-10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पैटर्न कर सकते हो। और उसके बाद खूब मेहनत की, और डेली बेसिस पे प्री और मेंस का यही लगता था कि भाई ज़िंदगी भर कर लो, ये तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत जनरली लगे। A 23-year-old resident of Kuchtown, she has achieved remarkable success in the UPSC examinations carried at Kerala. And not only she excelled in the UPSC examination, but she also qualified for the Jammu and Kashmir Administrative Services this year. And we will see in the coming time that she will be contributing a lot towards the upliftment of the community of Jammu and Kashmir. And why not? Because we are women and we can do anything. So UPSC is same, syllabus is same, everything is same, but our approach towards that exam is different, and that is how we turn on the other side of the desk. So that is the difference. I would like to say one thing, that often we say that we will not do hard work up to this much level, but we will do this thing, and मतलब ये होता है ना, हमें होता है कि जैसे हम आधा देखा जाएगा, but let me tell you, there are no half efforts. Half efforts कभी आपको half results नहीं देते, they only give 0 results. तो जब efforts करने हैं तो पूरे करने हैं, और क्योंकि आपको ना वो टाइम ना वो रिसोर्सेज वो कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, और अपनी फुल एनर्जी जो है एक ही अटेम्प्ट में, या मतलब अब कितने अटेम्प्ट होते हैं वो किसी के डिस्पोजल पे नहीं होता है। जब भी कोई भी इंसान इस पेपर में फेस करता है तो उसका यही होता है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में और जल्दी से जल्दी साइकिल से बाहर निकलना है। दैट इज योर डेस्टिनी एंड दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज योर हार्ड वर्क। गिव योर बेस्ट, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना है, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को करने में, हैंडल करने में, एंड टू अरेंज सच ह्यूज प्रोग्राम। बट मैम, बिना मैम के पॉसिबल नहीं था, इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यू मैम। So thank you so much for conducting such a good program for these students. और ऐसे रैंक होल्डर्स, क्योंकि I have been in this field for around 15 years now, इतने बड़े रैंक होल्डर्स एक स्टेज पे इतनी जल्दी आपको